ਹੈਲੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2-3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਡਾਰਕਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਡਾਰਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 2 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। पहला सेंटेंस सी कंप्यूटर सही नहीं चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए ने ते सही भी है। इसकी ट्रांसलेशन कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये जो है ट्रांसलेशन इसकी बनती है। नैक्सट है तुसी कित्थों आ रहे हो, तुसी कित्थों आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये इसकी ट्रांसलेशन बनती है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो कई बार फ्रॉम ਨੂੰ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, इस तरह भी बन सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, एक गल ਦਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ, ਉਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜੋ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਲਏ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਐਂਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਹੈ, ਈ ਹੈ, ਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਆ, ਏ, ਈ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨ, ਹਾਂ, ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਟਿਵ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਵ, ਇਹ 2 ਨੇ, ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ 3rd ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਬ ਦੀ 3rd ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪਲੱਸ ਬੀਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ, ਹੈਵ ਬੀਨ। 2 ਪਾਰਟਸ ਵਾਲੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਬਣ ਗਈਆਂ 2,
टू पार्ट्स ने ईच दे, ठीक है। जिस तरह कि हैज बीन एक हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन दूसरी हेल्पिंग वर्ब होगी, ते प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होनी है। जिन्ने भी टेंस बेस्ड सेंटेंसेस ने पैसिव उन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो ये भी एक्सैप्शन नहीं है, इत्थे भी थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। सो डियर फ्रेंड्स, एक गल मैं होर दस दवां, इत्थे वैसे दसी हुई है पहला, फिर भी हो सकता है कोई साथी कोई नवे आए होण। जो हैज है इन्हां आपां ने थर्ड परसन सिंगुलर सब्जैक्ट्स नाल यूज करना है, इसकी वरतों हैज दी थर्ड परसन सिंगुलर सब्जैक्ट्स नाल होगी। थर्ड परसन सिंगुलर्स दे विच कौन आ जांदे है जी, जिवें कि ही है, शी, इट, किसी का नेम हो सकता है, ਜਾਂ इस तो बिना कोई होर भी सिंगुलर जो है नाउन हो सकती है, जिसकी एज ए सब्जैक्ट जो आ जाए तो आप हैज उत्थे यूज करेंगे, ठीक है जी। तो हैव यूज होएगा फर्स्ट पर्सन नाल, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी दोनों नाल हैव यूज होना है। इस तो बिना यू है, यू नाल भी हैव यूज होएगा, दे THEY दे इन्हां नाल भी हैव है। सिंपल लैंग्वेज दे विच छोटे शब्दां च संखेप विच जेकर समझिए तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्लूरल सब्जैक्ट्स ने इनकलूडिंग आई हालांकि सिंगुलर है पर ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होने कारण जो है इस नाल हैव लगता है, जिवें कि पहले ही दस्सिया है कि फर्स्ट पर्सन सैकंड पर्सन प्लस प्लूरल कोई भी, ठीक है। हैव की वरतों किहड़े सब्जैक्ट्स नाल हुंदी है ये ध्यान रखना आपने, फर्स्ट पर्सन सैकंड पर्सन तो कोई भी प्लूरल, ठीक है। फर्स्ट पर्सन दो हो गए आई एंड वी, सैकंड पर्सन यू हो गया, तो प्लूरल कोई भी हो सकता है, जिवें दे है, दे दी एक प्लूरल है, इस तो बिना होर भी कोई प्लूरल सब्जैक्ट हो सकता है, उस नाल आपां हैव दी वरतों करांगे, ठीक है। चलो हुण देखो सेंटेंस आया पहला ही सेंटेंस अपने को, पंजाब पुलिस ने इतिहास रच दिता है, पंजाब पुलिस ने इतिहास रच दिता है, ठीक है जी। सॉरी, रच दिता है आ गया जी, ठीक है, आ है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसनूं आपां एवें भी कह सकते सी कि पंजाब पुलिस इतिहास रच चुकी है, पंजाब पुलिस इतिहास रच चुकी है, एवें भी हो सकता सी सेंटेंस, ठीक है जी। सो फिर भी आपां कह कहंदे भी पछाण इत्थों पछाण लेंदे कि प्रेजेंट परफेक्ट दा ही टेंस है, चुका है चुकी है आ गया सी तां भी प्रेजेंट परफेक्ट सी, हुण दिता है आ गया तां भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट दा है। सॉरी, हुण एक स्टैप क्लीयर हो गया। सब तो पहला स्टैप हुंदा कि टेंस नूं पछाणो इत्थों, दूसरा स्टैप हुंदा कि वॉइस देखो की है, पंजाब पुलिस ने इतिहास रच दिता है, इतिहास रचन का एक्शन होया है किसने किया है, पंजाब पुलिस ने, ठीक है। सो इस दे विच जो पंजाब पुलिस है वो एक्टिव मोड पे है, ठीक है, एक्शन किया है पंजाब पुलिस ने, सो सेंटेंस की होया जी एक्टिव सेंटेंस है, क्लियर। हुण सब्जैक्ट की है पंजाब पुलिस लिख लिया, पंजाब पुलिस नाल आपां हैव लिखांगे जी, ये पहला ही दस्सिया होया सेंटेंस। ध्यान रखियो जो पुलिस वर्ड है इसनूं प्लूरल मन्निया जाता है, प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है। सो इत्थे हैव यूज किया है, हैव रचना यानी कि क्रिएट दी थर्ड फॉर्म हो जी क्रिएटेड, इतिहास हिस्ट्री, ओके। पंजाब पुलिस हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, पंजाब पुलिस ने इतिहास रच दिता है, जब पंजाब पुलिस इतिहास रच चुकी है, ओके जी, एक्टिव सेंटेंस थी। दूसरा देखो, चोर रंगे हथी फड़िया गया है, चोर रंगे हथी फड़िया गया है, आ है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। जब चोर रंगे हथी फड़िया जा चुका है, एवं भी हो सकता सी, चोर रंगे हथी फड़िया जा चुका है, ठीक है, तां भी प्रेजेंट परफेक्ट दा सेंटेंस सीगा। ते ये देखो एक्टिव है कि पैसिव है, ये सब्जेक्ट कौन है, चोर। हुण चोर ने किसी नूं फड़िया है जां चोर खुद फड़िया गया, चोर खुद फड़िया गया यानी कि इसने फड़न का जो एक्शन है चोर ने किया नहीं है, चोर के उपर फड़न का एक्शन क्या हो गया, ठीक है, पुलिस ने करता, ठीक है। सो आपां की ये इसका मतलब की होया कि ये सेंटेंस जो पैसिव वॉइस है, एक्टिव नहीं है, ये रूल आपने फॉलो करना है। हैज बीन थर्ड फॉर्म जां हैव बीन थर्ड फॉर्म इत्थे लगनी है। देखो द थीफ सिंगुलर है, इस करके हैज बीन आपने लगा दिता। फड़े फड़न इंग्लिश है कैच, CATCH कैच, कैच की थर्ड फॉर्म होगी कॉट, ठीक है। द थीफ हैज बीन कॉट, किवें फड़िया गया, रंगे हथी की इंग्लिश होती है रेड हैंडेड, ठीक है। द थीफ हैज बीन कॉट रेड हैंडेड, पैसिव सेंटेंस से पैसिव का रूल लगा के फॉलो करते हुए अपने ट्रांसलेशन कर दी।
ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰ बरामद नहीं हुई है, चोरी हुई कार बरामद नहीं हुई है, ठीक है। कार चोरी होगी, ठीक है, चोरी हो गई सी, चोरी दी कार जी चोरी हो चुकी है वो बरामद नहीं हुई है ई है। सब तो पहला काम था टेंस पछाड़ना है, पछाड़ लिया ई है आ गया, ई है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है जी। हुण देखो एक्टिव है कि पैसिव है। कार जो है बरामद, कार ने थोड़ी ना कुछ बरामद करना है, ना करने का एक्शन होया है, कार ते होना सी पर वो कार लभी नहीं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ मिली नहीं, रिकवर नहीं हुई, ठीक है। पैसिव सेंटेंस है। कार केड़ी द स्टोलन कार, कार केड़ी स्टोलन कार। ये वर्ब दी थर्ड फॉर्म है वैसे स्टील दी, स्टील स्टॉल स्टोलन, ठीक है। ये वर्ब दी थर्ड फॉर्म स्टोलन है, पर इत्थे एज अ वर्ब नहीं आया। इस शब्द जो स्टोलन वर्ड है इत्थे एज अ वर्ब नहीं आया, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे आया है। किस दे तौर पे आया? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कई बार वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो ना विशेषण का काम कर देती है, विशेषण इंग्लिश आप कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। स्पेलिंग वैसे एडजेक्टिव है बोलते हैं कई बार इसको एडजेक्टिव है, डी साइलेंट होता पर इसके विच एडजेक्टिव विशेषण। हुण इत्थे जिहड़ा स्टोलन है विशेषता दस कार दी, किहड़ी कार जो चोरी हुई, चोरी हुई कार, ठीक है। तो स्टोलन वर्ड की है इत्थे कार की जो विशेषता दस रहे हैं, ठीक है। होर भी इहदे वर्ड हो सकते हैं, ब्रोकन चेयर टुटी हुई कुर्सी, ब्रोकन की इस विशेषण के तौर पर वरत्या गया है, इत्थे स्टोलन भी विशेषण है। सो ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट हो गया। द स्टोलन कार हैज नॉट बीन, क्योंकि पैसिव है ना, रिकवर्ड, रिकवर की थर्ड फॉर्म रिकवर्ड, रिकवर क्या होता? बरामद होना या बरामद करना, रिकवर्ड थर्ड फॉर्म लगी, ठीक है। द स्टोलन कार हैज नॉट बीन रिकवर्ड। ओके जी, सेंटेंस काम दूगा, एवं दे सेंटेंस की ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ सेंटेंस देखो जी, कि उसने FIR फाड़ दी है, कि उसने FIR फाड़ दी है। हुण देखो दिती है ई है, यानी कि पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, ठीक है। उस तो बाद ये देखो सेंटेंस पैसिव है कि एक्टिव है। फाड़न का काम किसने किया है पूछ रहे आप उसने, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस है, ये पैसिव नहीं है, ठीक है। जे तां हुंदा कि FIR फाड़ दी गई है किसी द्वारा, ठीक है, फिर पैसिव सी। हुण जिसने एक्शन करना वो ही इत्थे बैठे सब्जेक्ट के तौर पे, तो एक्शन जो है टॉर्म का इस नाल रिलेशन इस नाल संबंधित है। सो ते सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है, ठीक है। ही ए रूल फॉलो करना है, हैज हैव ते थर्ड फॉर्म क्योंकि एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट की है ही नाल हैज लगना है, हैव नहीं लगेगा क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। सो हैज यूज करना सी, हैज तो भी पहला लिखता है, क्यों लिखा जी? क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, इस करके हेल्पिंग वर्ब ਨੂੰ भी सब्जेक्ट तो पहला लिखना पैंदा है ਆਪਾਂ ਨੂੰ। सो हैज ही फाड़न ਦੀ अंग्रेजी ਹੁੰਦੀ ਜੀ टीयर, TEAR टीयर, ਤੇ थर्ड फॉर्म इसकी है जी टॉर्न, थर्ड फॉर्म लगानी है टॉर्न, टीयर टॉर, टॉर्न ਹੁੰਦਾ है TEAR टीयर, सेकंड फॉर्म है जी TORE टॉर, ਤੇ थर्ड फॉर्म है जी टॉर्न। हैज ही टॉर्न द FIR की फुल फॉर्म की होंगी है जी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है जी FIR। उस तो बाद है जी क्वेश्चन मार्क लग गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस सी। मामले दा जांच अधिकारी जो जांच कर रहे हैं मामले दी, ठीक है, उसको आप इंग्लिश कहते हैं IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है IO, ठीक है जी। जिवें कोई केस हो जाता तो उसका IO लगाया जाता है, इंचार्ज लगाया जाता है, ठीक है, केस का उसको IO पोस्ट है, मतलब समझो जिम्मेवारी है उसकी, ठीक है, उस ऑफिसर की, तो उसको IO कहते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे, इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो, ठीक है जी। सो मामले का जांच अधिकारी उत्थे पुज गया है, पुज गया है कौन? जांच अधिकारी। एक्टिव सेंटेंस है, आ गया, इतों पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट है, सेंटेंस एक्टिव है क्योंकि पहुंचने वाला कौन है? जांच अधिकारी। जांच अधिकारी यानी कि एक्टिव मोड दे विच है, एक्टिव सेंटेंस है। हैज हैव थर्ड फॉर्म इन्हां विचों ए रूल फॉलो करना है, ठीक है। द IO ऑफ द केस, इन्हां सब्जेक्ट बन गया केस का जांच अधिकारी, द IO ऑफ द केस, ठीक है। सिंगुलर है, हैज लग गया जी। पहुंचना है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड
उत्थे यानी कि देयर, ठीक है। द आईओ ऑफ द केस हैज रीच्ड देयर, क्लियर। एक्टिव सेंटेंस सी, कोई दिक्कत नहीं है, ते पॉजिटिव सेंटेंस सी। उस तो बाद देखो जी, कि आरोपी नूं जमानत ते छड़ दिता गया है, कि आरोपी नूं जमानत ते छड़ दिता गया है, क्वेश्चन मार्क आ गया जी, आ है टेंस तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ते क्वेश्चन मार्क लग गया है, इसका मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है इस, ठीक है। ते हुण देखो एक्टिव है कि पैसिव है, आरोपी नूं जमानत ते छड़ दिता गया है, ठीक है, पैसिव सेंटेंस हो गया जी, ठीक है। और आरोपी ने किसी नूं नहीं छड्डिया बल्कि आरोपी नूं छड्डिया गया है, छड्डण दा एक्शन किस ते होया, आरोपी ते होया, ठीक है। सो पैसिव है, हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म लगनी है, ठीक है। सो आरोपी नूं आपां इंग्लिश कहंदे दी एक्यूज्ड, दी एक्यूज्ड। जदों तक अपराध साबित नहीं हो जाता उस बंदे ते, ठीक है, जिसके ऊपर कोई केस पाया गया है, उदों तक उसनूं जो है आरोपी कहा जाता है, ठीक है, दोषी नहीं कहा जाता, अपराधी नहीं कहा जाता, उदों तक तो टर्म है उस वास्ते ना आरोपी वर्ड जो वरते जाता है। इंग्लिश आपां कहते हैं उसनूं एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, ठीक है। दी एक्यूज्ड सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हैज बीन लगना है, हैज नूं इधरले पासे लगावांगे, बीन नूं इधरले पासे लगावांगे, ये सब्जेक्ट हो गया। जदों हेल्पिंग वर्ब दे दो पार्ट होण, जिवें दे दो पार्ट ने हैज ते बीन है, टू पार्ट्स ने, ठीक है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पहला पार्ट सब्जेक्ट तो पहला लिखांगे, दूसरा पार्ट सब्जेक्ट तो बाद विच लिखना होंदा है, ठीक है। हैज द एक्यूज्ड बीन रिलीज्ड, छड्ड देना, रिलीज, रिलीज दी थर्ड फॉर्म, रिलीज्ड किसते, जमानत ते ऑन बेल, ठीक है जी। पैसिव सेंटेंस से पैसिव का रूल अपन ने फॉलो करके सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर दी, ओके जी। नेक्स्ट देखो, ओ पुलिस हिरासत चों भज गया है, ओ पुलिस हिरासत चों भज गया है, पुलिस की कस्टडी चों भज गया है, आ गया प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। सेंटेंस एक्टिव है, भजन वाला कौन है, ओ सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट के तौर पे बैठा है, डूअर है, डूअर सब्जेक्ट एक्टिव मोड पे हुआ है, सेंटेंस एक्टिव है, पैसिव नहीं है, यानी कि ये रूल लगना हैज, हैव अते हैज है थर्ड फॉर्म, ये फॉलो करना है। ही है सिंगुलर है, हैज लग गया, ठीक है। भज जाना, फरार हो जाना, इसलिए वर्ड है इंग्लिश में एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म बन गई जी एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड, ठीक है। एक फ्रेज भी है फरार लई, एट लार्ज, AT एट LARGE, एट लार्ज, जिवें पहले ही इज एट लार्ज, वो फरार है, ही इज एट लार्ज, ठीक है। सो एब्सकॉन्ड का मतलब भी भज जाना है, फरार हो जाना होंदा है। सो ही हैज एब्सकॉन्डेड, कित्थों भज गया, फ्रॉम पुलिस कस्टडी, फ्रॉम पुलिस कस्टडी, ठीक है, पुलिस की हिरासत चों भज गया है, ठीक है जी। अगला सेंटेंस देखो, कि उसका मोबाइल निगरानी हेठा रखा गया है, कि उसका मोबाइल निगरानी हेठा रखा गया है, ठीक है। सो रखा गया है, आ गया जी, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। ते पैसिव सेंटेंस है जी, मोबाइल निगरानी, मोबाइल निगरानी नहीं कर रहा बल्कि मोबाइल निगरानी हेठा रखा गया है, ठीक है। निगरानी हेठा रखने का एक्शन किसते होया, मोबाइल ते, सेंटेंस पैसिव है जी, ठीक है जी। सो पैसिव का रूल फॉलो करांगे, हैज बीन, हैव बीन, जो पैसिव बनाना है हैज है ना आप बीन जोड़ देंगे हैं, वर्ब दी थर्ड फॉर्म होंदी हो इसदे विच, ठीक है, ओके। देखो हिज मोबाइल, उसका मोबाइल, ये सब्जेक्ट है, हिज मोबाइल, उसका मोबाइल, ठीक है, सिंगुलर है, हैज लग गया, ठीक है। मोबाइल फोन है तो फोन तक है, ठीक है, हिज मोबाइल फोन, उसका मोबाइल फोन, ये हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर है, एक मोबाइल फोन है, हैज बीन, हैज इधर क्यों लगाया है, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इस करके हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट सब्जेक्ट को भी पहला लिख दिता है, ठीक है। उस तो बाद सब्जेक्ट इतना बड़ा सब्जेक्ट है, 3 वर्ड्स का, उस तो बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट इत्थे आ गया जी, ठीक है। रखना, कीप, कीप दी थर्ड फॉर्म होंदी है जी कैप्ट, सेकंड फॉर्म भी कैप्ट है, कीप, कैप्ट, कैप्ट, ठीक है। हेठा यानी कि अंडर, निगरानी, सर्वेलेंस, सर्वेलेंस, ठीक है, सर्वेलेंस, ठीक है। ये जगह जगह ते लिखा भी होंदा है, तुसी कैमरे दी निगरानी हेठा हो, तो सर्वेलेंस का मतलब है निगरानी, ठीक है, अंडर सर्वेलेंस, निगरानी हेठा। कीप यानी कीप दी थर्ड फॉर्म कैप्ट है, कि उसका मोबाइल निगरानी हेठा रखा गया है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इस लई किस नूं जिम्मेवार ठहराया गया है, इस लई किस नूं जिम्मेवार ठहराया गया है, ठीक है। सो सेंटेंस पैसिव है जी, आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, किस नूं ठहराया गया है, ठीक है। पैसिव सेंटेंस है, एक्टिव नहीं है, ठीक है जी। हु
कौन यानी कि जिसनों जिम्मेवार ठहराया गया, हु। सिंगुलर मनांगे इसनों, हैज बीन लग गया जी पैसिव है। ठहरावा होल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म होगी जी हेल्ड, HOLD होल्ड होता है, होल्ड हेल्ड हेल्ड, ठीक है जी। हु हैज बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्वेश्चन मार्क हो गया जी, ठीक है जी। हु तो बाद हैज बीन सीधा इत्थे लिखांगे, ठीक है। हु WH फैमिली का वर्ड है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसनों पहले नंबर ते ही लिखा जाता है जो सेंटेंस प्रश्नवाचक हो, ठीक है जी। WH फैमिली वाला प्रश्नवाचक हो। उस तो बाद अपने को लास्ट सेंटेंस है जी, ये सेंटेंसिस तुहाडे लई ने, तुसीं जो है कमेंट बॉक्स दे विच कोशिश करना, इन्हां दी ट्रांसलेशन करके मैनूं मैसेज करना, ठीक है। एक कार सीमेंट दे लदे हुए ट्रक नाल सीधी टकरा चुकी है, ठीक है। कार ने टक्कर मारी सीधी, ठीक है। सीमेंट का लद्या हुआ सी ट्रक, लोडेड सीगा सीमेंट उस दे विच, ठीक है। सो टक्कर मारने वाली कौन है, कार। इसका मतलब सेंटेंस की है, एक्टिव है, एक्शन किसने किया, कार ने किया। सो सेंटेंस एक्टिव है, चुकी है आ गया, चुकी है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है। दोनों गल्लां हो गई। जो भी ट्रांसलेशन करनी है सब तो पहला अपने टेंस पछाणना है, दूसरे नंबर पे वॉइस पछाणना है, ठीक है। जे एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस वाला रूल उस टेंस का अप्लाई कर दो, जेकर सेंटेंस पैसिव है तो उस टेंस का जो पैसिव वाला रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है जी। ये एक्टिव है, आकार, कार ने किया टक्कर मारी, ठीक है, सीधी टक्कर मारी कार ने। हैज कोलाइडेड, कोलाइड मतलब टकराना, ठीक है। सीधी का मतलब हेड ऑन हो गया, हेड, ठीक है। सिरा, सिर मतलब सीधा टकरा गया नहीं, ठीक है। हेड ऑन आप इसनों कहते जो सीधी टक्कर होगी ना, ठीक है, उसनों हेड ऑन कहते हैं। टकराना होगा कोलाइड, कोलाइड की थर्ड फॉर्म होगी कोलाइडेड, ठीक है। अ कार हैज कोलाइडेड हेड ऑन, कार सीधी टकरा गई, ठीक है, किस नाल, विद अ ट्रक, एक ट्रक नाल। कार ने एक ट्रक विच सीधी टक्कर मारी, ठीक है। किहड़े ट्रक नाल, लेडन विद सीमेंट, जो सीमेंट का लद्या होया सी। लेडन हुंदा लद्या होया, लोडेड भी हुंदा, ठीक है, लेडन भी हुंदा वर्ड। लेडन विद सीमेंट, सीमेंट दे लदे हुए ट्रक दे विच जो है कार ने टक्कर मारी, यानी कि कार सीमेंट दे लदे हुए ट्रक नाल सीधी टक्कर मार चुकी है या टकरा चुकी है, ठीक है जी। ये सीगे अज दा अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये दो वाक ने, नतीजा ऐलानिया गया है, ठीक है। CBSE ने अज +2 का नतीजा ऐलानिया है, ठीक है। तुसीं ये सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अपना नतीजा भी आपां पेपर देवांगे, अपना भी ऐलानिया जाएगा। सो इसका कमेंट बॉक्स के तुसीं ट्रांसलेट करके मैनूं भेजोगे। जख्मी व्यक्ति नूं हस्पताल लिजाया गया है, एक ये टेंस है। दोनों सेंटेंस दी तुसीं जो है कमेंट बॉक्स के विच ट्रांसलेशन करके भेजो। उम्मीद करदा वीडियो वधिया लगी होएगी, जानकारी पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो नूं प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ते जो साथी नवे आए ने चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। ते मिलते हैं फिर आपां नैक्सट वीडियो दे विच। उदों तक शब्बा खैर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।